पीपल विल कम, स्टे एंड लीव, यूनिवर्सल रूल है। फर्स्ट सबसे ज्यादा पहले हमें ये पूछना चाहिए अपने से, कल्चर है क्या वो एक सेट वैल्यूज है या या हमारी कोई विनिंग स्ट्रेटजी रही है विच हैज गिवन अस डू बेनिफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी पेन डाउन एंड डिफाइन दैट। आई थिंक एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और बिग शुड डिफाइन देयर वैल्यूज। मैं इसमें फर्म बिलीव करता हूँ। जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एकेडमिक और स्किल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आपकी अदर साइड है जो हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जो मैच मेकिंग है ना, ये आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है और इसमें कोई ना कोई साइंस यूज है। आज हम साइकोमेट्रिक की बात करें या जो मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियरल पैटर्न, किस टाइप के बिहेवियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करें। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को हायर करना चाहता हूँ, हो सकता है वो एकेडमिक थोड़े से कम हो सकता है फंक्शनली भी उनको थोड़ा सा स्किल कम हो जो ट्रेनेबल है, बट वो बिहेवियरली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने बॉस के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे या बॉस उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे, वो स्टाइल मैच कर रहा है क्योंकि उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ है मेरे गुरु, मेरे बॉस, जिन्होंने मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज में जो वर्ड ह्यूमंस है ना, मुझे उसका मतलब समझाया है। बिकॉज यू कैन ओनली बी अ गुड एचआर if you think from the employee's perspective as well while thinking about the business when you're working as a business HR partner or eventually as a head HR. His teachings have helped me a lot while building team for my business and आज भी मुझे कोई एडवाइस चाहिए होती है तो मैं इन्हें ही फोन घुमाता हूँ। He has spent over a decade with Domino's in various roles, then moved to Paradise Biryani as head HR, and now he is heading HR for Subway India. Please welcome Mr. Aman Mahajan. So thank you so much sir for accepting our invitation. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए. Thanks for Bhairav Singh having me here. It's my pleasure to be with you guys. Thank you sir. सर थोड़ा सा कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, एग्जीक्यूटिव एचआर से हेड एचआर तक का सफर कैसा रहा? So वैभव, मेरे को नहीं लगता कि एचआर मैंने बाय चॉइस लिया है। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। एमबीए एचआर में एडमिशन मिला एंड आई परस्यूड दैट आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड आई लैंडेड बैक टू दिल्ली to start my career. But I was fortunate enough way back in 2000 when there was kind of very less number of jobs. People were kind of getting fascinated by call centers, higher package, lot of facilities. But I was clear that I have done my MBA HR, so I have to start from HR because it's a long-term thing, right? I cannot start from something and then getting into something. Correct. Though I was not clear whether I will enjoy my job or not, but that experience would have been after starting my job. As I said, I was fortunate enough. I got my first job very early. The day I landed in Delhi, within a month or so, I got a call and I got a first job in Dynamic Industry in Gurgaon. Fantastic boss, fantastic founders. They were kind of they were preparing ancillary parts for Maruti Udyog Limited, and they were having manufacturing for plastic molding. अच्छा. So I got a very good exposure right in the beginning. Factory environment, how to deal with labor, how to recruit them, how to handle some of the partners, exposure towards compliance, which was very high in those environments. Then I moved to another industry which was also manufacturing, which is export house. They were dealing with soft toys. Achha. And these two organizations has given me a very strong foundation, but I believe today, which has exposed me towards HR operations, compliance, and some of the requirement which was very visible, very much needed in the factory. मैं ना बहुत सारा टाइम फैक्ट्री में वर्कर के साथ स्पेंड करता था, बट दे आर डूइंग, वो क्या काम करते हैं, टूल किट क्या होती है, कैसे वो बनाते हैं मोल्डिंग के, प्लास्टिक से कैसे चेयर बन रही है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था। तो टाइम तो होता ही था, आप पूरा 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहे हो, उसमें आपके पास, तो मैं हमेशा, मेरे को अभी भी याद है सॉफ्ट टॉयज वाली कंपनी में भी और उसमें भी, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन ऑपरेशन एंड विद दिस प्रोडक्शन गाइज, which has supported the organization in the odd situation because there was a very good relationship what HR was kind of sharing with large number of factory workers. Then I moved to a financial industry. So I got a good mentorship of head HR support in first two organization, but third organization there was no head HR.
So the organization was having into a merchant banking and financial products. They were also kind of starting insurance game. Insurance was getting privatized at that time, 2002, and I got into that role. And there was some guy who was taking care of payroll or something, administration guy who was kind of managing. But then I came as a HR leader, started working with managing director. Though there was no direct mentorship from the HR, but I got a very good exposure working with business heads and managing director directly. That have actually sharpened my skills in terms of how to deal with leadership. So वहाँ के जो रिटेल के हेड थे या मर्चेंट बैंकिंग के हेड थे उनके साथ बहुत ज़्यादा बात होता था. उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था कि बिजनेस में क्या हो रहा है, हाउ वी कैन पार्टिसिपेट. आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू टैलेंट एक्विजिशन देयर, बिकॉज आपको पता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में टैलेंट एक्विजिशन इज द की थिंग. बिल्कुल अट्रैक्शन भी होता है, सब कुछ होता है, एक्सपेंशन हो रहा था. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड expanding myself towards campus interviews, having those relationships with the colleges and everything. And then 2005 I joined Domino's Pizza. Domino's was 100-store company. Ajay was building this organization, very clear, to build this for in a longer term and a large organization, I think. And I was probably third HR guy. There were two already there, and I've been hired for North region. And Ajay was almost building that org chart for the entire organization, where he was in process of hiring head HR and some of the other HR folks. So I joined in the HR North, and then given the additional responsibility of East. So I handled that. I was in that role for almost 2.5-3 years. Moved from 40-45 store of North to 100 stores, and East from 7-8-10 stores to probably 15-20 stores. And then 2008 I've been kind of shifted to corporate. So that's where I was involved in technology, because organizations started doubling their size. Right. So HRIs was important. That's the first role given by my head HR, and then talent acquisition for corporate and talent management and comp and band attached to me. उस रोल में रहा मैं 4 साल. बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर था, because I got a chance to work with different leaders in the corporate after my business HR role. Then we come across with a new brand called Dunkin' Donuts, and been shifted there for 1.5 years short stint. I become the head HR for that company, worked on some of the values, because it was important to differentiate that brand from Domino's. It should not be like copycat, because वो डिलीवरी ब्रांड था, डाइनिंग टाइप कैफे टाइप था. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसका. बहुत मजा आया उसमें. थोड़ा हमने वैल्यूज के ऊपर काम किया. उससे पहले हमने डोमिनोज में सक्सेशन प्लानिंग पे कुछ पार्टनर के साथ काम किया था. उस रोल के बाद फिर मेरा 4th रोल था कॉम्प एंड बैंड का. सो दैट इज द रोल व्हेन वी गॉट Domino's, Dunkin', Sri Lanka, Bangladesh. So there was a need to bring shared services together. So technology, all salary survey with Hewitt, and work with Mercer, some of these brands. We've done a lot of work in terms of reward, performance management. ये सारा comp and में specialized काम किया, and then I moved to a role of a business HR partner. There I become business HR partner for India, Bangladesh, Sri Lanka. Handled that role. So 2019 when I left Domino's, and it was a fantastic journey of 14 years. Those 14 years I worked with 5 head HR and 6 CXOs, because that is also important, because I was lucky enough to be moving across some function of HR, at the same time work with different leaders. Because जब आप अलग अलग लीडर के साथ काम करते हो, you adjust your style of working with them and learn a lot of things and add to your profile. So मेरे लिए ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए. How you upgrade yourself in terms of skills, how you upgrade yourself in terms of knowledge, how you upgrade yourself of social skills and other behaviors is very very important. True. तो उसके बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड आई टुक द रोल ऑफ CHRO विद पैराडाइज फूड कोर्ट. ये फैमिली लेड बिजनेस था, और समारा कैपिटल व्हिच इज द इन्वेस्टिंग कंपनी, दे वर पार्टनर, एंड द आइडिया वाज टू स्केल दैट ऑल इंडिया. Lot of work was fantastic work was happening, how to automate most of the processes in the brand, and we become the QSR kind of thing, where we can expand the brand. I got an opportunity to set the entire infrastructure of HR. So I worked with that brand for 4 years. We started from setting up the system, processes, technology. We become the great place to work. So that was the journey of Paradise. And then I took the role of culinary brand as in a CHRO, where we have a brand like Subway and Lavazza. Interesting brand. We are trying to do a lot of stuff here.
soon you will see us disclosing a lot of our initiative on LinkedIn and other places. So that's Oh. all. So, sir, it's been twice that you've been a head HR. और मतलब जब मैं था और जब काम कर रहा था एचआर में, तो अल्टीमेट गोल ही हेड एचआर लगता था, और आप 2 बार रह चुके हैं हेड एचआर. अब क्या आगे? इसका कोई मेरे पास डायरेक्ट आंसर नहीं है. मेरे को एचआर के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को कुछ और करना है. सो आई थिंक आई हैव टू डू एचआर. द ओनली पॉइंट इज, कैन आई इम्पैक्ट द बिजनेस, कैन आई इम्पैक्ट द P&L, कैन आई इम्पैक्ट द पीपल which can ensure their growth. That's my ultimate aim, and that's what I'm practicing for last 10 years. The only beauty of getting into this position is you can influence some of the decisions, and that is the only side which I'm enjoying right now. But it all depends upon what kind of environment you are working in, what kind of people you are working in, how much they want you to participate. That is always there. But being in a head HR, I just wanted to make sure that I understand the stage of the organization, and I start my journey from there and build that organization such a way that the human resource infrastructure is completely taking care of people's need for future. That's the ultimate. ग्रेट सर. और जैसा आपने सोचा था एचआर हेड का रोल होगा, वैसा आपको लगा? हाउ वाज इट व्हेन यू बिकेम एचआर हेड फॉर द फर्स्ट तो टाइम? मेरे को ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया, बिकॉज पता नहीं पिछले 10 साल से जिन भी एचआर हेड और सीएक्सओ के साथ मैंने काम किया है, आई वाज पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ दो डिसीजन मेकिंग. Though I was not influencing directly many things, but these guys were so nice. They always empowered me to be part of those conversations. So when I switched from one role to the other role, I did not find much difference. The only thing is I was cautious enough to be successful in that role. The stage was very, very different. And that is something which has given that excitement to me, because you need to solve something which is not been solved over the last 4 years. Why Correct. people are leaving? Why HR people are not motivated enough to, continue their jobs? And that's where first 6 to 8 months in Paradise Food Court, I feel so happy when I look back. And then I also feel that होता क्या है ना, आपको काम करने में मजा आ रहा है, काम कुछ भी हो. तो मेरे को मजा आता है कि मैं कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि कोई सस्टेन ही नहीं कर रहा, कोई स्टेबल ही नहीं है. देयर इज द एंटायर थिंग्स आर काइंड ऑफ नॉट दैट इन शेप, एंड दैट motivated me to kind of solve that problem. And that's where I always believe that if you want me to be very, very effective, you help me to get deeper into your business problems or organization problem or a departmental problem. Don't tell me what to be done. Let me find out how to give a solution to that problem. And that's what I'm enjoying. I'll keep continuing. You love solving problems. Yes. तो सर, वैसे तो बताना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि कोई एक चीज, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब आपने जिक्र किया था कि 3 लोग वहां से इमीडिएटली छोड़ गए थे. एवरेज टेन्योर पिछले 6-7 महीने का था, 3-4 लोगों का. आपको क्या लगता है कि कोई एक चीज जो आपको ध्यान जाती है, जो आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया था, या कोई एक चीज ऐसी आपने की जिससे फर्क पड़ा? ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. मेरे को लगता है कि हमने 15-20 साल में बहुत काम कर लिया होता है, और उस काम को दोबारा रीस्टार्ट करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है कि यार ये पेरोल करना है, लोग आएंगे, उनकी ऑनबोर्डिंग देखनी है क्या. ये तो मैं 20 साल पहले करता. मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है. मेरा सोचने का तरीका है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज क्या है और आप किस स्टेज में एंटर करते हैं, and take the accountability and responsibility of that stage and set that. You might be excellent in your strategy. If that strategy is not matching with your execution, that doesn't matter. Organization not going to benefit. The example which I shared with you, and I'm just kind of opening up a little more. I will not talk about others because I don't know everyone. But the only issue which I found was the stage was very different and people were working on very different dimension, and I started working on that stage. And stage was it's a very basic HR infrastructure was not. लोग आएंगे कहाँ से?
आ जाएंगे तो उनको ध्यान कौन रखेगा? अगर वो छोड़ के जाते हैं तो वो कैसे होगा? जो लोग आएंगे उनको एंगेज कैसे करोगे? हम्म, अच्छा, ये सब करने के लिए भी आपको प्रोसेस और सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। एचआर टीम कंफ्यूज थी क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो आई स्टार्टेड एज ए रीजनल एचआर। आई assumed the role of regional HR in that company for first 6 months. हम्म। And once we are through with that stage, we become the great place to work. That's a journey. मतलब ऑलरेडी इतनी भसड़ थी, बिकॉज वो ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्री है, रिटेल है, और सिस्टम था नहीं, तो वहां पे बंदा आके ही कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। ह्यूज प्रेशर था, लोग नहीं है स्टोर्स में। और उस आगे बढ़ने के लिए आपको पहले वो पीछे आके उन चीजों को, बेसिक्स को सॉल्व करना था। एंड यू कंसीडर्ड योरसेल्फ एज अ रीजनल रीजनल एचआर। एचआर। तो मेरे को लगता है लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आइडेंटिफाई द स्टेज एंड assume the role which is needed to be done. That's the role of the leader. Because काम करने वाले तो लोग हैं, आप हायर कर लोगे उनको। बट अगर आप वो रोल एज्यूम नहीं करोगे एज ए लीडर, हाउ यू विल गेट टू द सक्सेस? आप एक स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो और आप बोलते हो कि मैं तो मतलब वहां जाके एक कल्चर पे काम कर शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि पेरोल कौन प्रोसेस करेगा। तो दैट्स अ रॉन्ग स्टार्ट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू हैव। तो इसको मैं ना इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको इस तरह से देखिए कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, दोनों चाहिए टू गेट द आउटपुट। बट विदाउट हार्डवेयर कैन यू पुट अ सॉफ्टवेयर इनसाइड? तो आप ये डिफाइन करिए कि क्या क्या हार्डवेयर वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, टू रन an organization, you need to comply with government rules and regulations. Correct. You need to pay the salary. You need to know from where you will hire people. Correct. You need to know how to onboard them, how to resolve their queries, how to deduct their tax. This is a basic infrastructure. You need to know how to put their attendance in the system. तो पहला तो आप हार्डवेयर को बनाइए, फिर उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर डाल दीजिए। करेक्ट। तो अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर हार्डवेयर पहले से ही है, then your journey will start from somewhere else. Then you have to identify what needed to be done for this business. Right? So that's how for any startup, any company which is transforming. For example, Kalvi brand is a similar state. We have 20 years of history of Subway in India, but moving from some franchisees to master franchising happened just अभी। and जब वो हुआ तो आपने पूरा कंपनी बनाया। अब कंपनी में लोगों को हायर भी करना है, दे विल कम, दे विल स्टे, दे विल मूव, ऑल थिंग्स हैज टू बी हैंडल्ड। उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक एसओपी चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए। तो पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा ना। आप आते ये तो नहीं बोल सकते कि ओके वी विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर व्हिच विल बी ऑन पैरामीटर 1 2 3 4। यस, वी विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। करेक्ट। और उसके लिए आपको सिस्टम तो ठीक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बेसिक्स। ग्रेट सर। सो आप अभी आपने जिक्र किया रिक्रूटमेंट का, कॉम्पेनबेन का और बाकी सारी चीजों का। सो देयर आर डिफरेंट functions of HR. What is your favorite function? Very, very interesting question. I think I love all. See, I work with various leaders. We all love something and we don't like something. But मेरा principle ये है, you have to be into each and every aspect of HR. While you are if you need to give a solution to the organization and there is a discussion happening around culture, you need to have your point of view on that, because people will look up to you. I'm talking about as an SCHR or a CPT. If there is a crisis which is related with the regulations and you don't know about that, maybe some expert will solve it, but you should know about it. You should know about those regulations. If you don't know, you have to go and रिसर्च अबाउट। मेरे को लगता है यार कोई भी ना सब फंक्शन ना कम इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। हाँ, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को ना बिजनेस एचआर में बहुत मजा आता है, लेकिन वो मेरे को ऐसे बिजनेस एचआर ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत मजा आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्पेनमेंट को पसंद नहीं करता, या मैं टैलेंट एक्विजिशन को पसंद नहीं करता, या मैं कंप्लायंस एंड पेरोल को पसंद नहीं करता। मेरे को लगता है एज ए लीडर यू नीड टू अप्रिशिएट एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से हटके एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा एचआर से हटके इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखिए। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको कोई 7 8 10 डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपका ऑपरेशन होगा जो सेल्स करेंगे, या प्रोडक्ट होगा कोई,
कस्टमर को देखने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस होगा, HR होगा, ट्रेनिंग होगा, IT होगा, लीगल होगा, कुछ और डिपार्टमेंट भी होंगे, सप्लाई चेन होगा। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कम इंपॉर्टेंट है, और अब वो कम इंपॉर्टेंट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में है क्यों? लेकिन एज ए लीडर, एज ए एज ए एज ए as a senior most guy in the organization, you need to give respect to each and every department. ठीक है ना? तो मेरे को एक स्टोरी याद आती है, जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे मां सीता को वापस लाने के लिए, तो उनको ब्रिज बनाना था समुद्र के ऊपर, ये हम सबको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे थे, पत्थर ला रहे थे, नल नील के पास पावर थी, वो राम लिखते थे और वो पत्थर तैर जाता था। सारे लोग काम कर रहे थे उसमें। हाँ, वानर सेना काम कर रही थी, उनके जो भी एसोसिएट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पर एक गिलहरी भी ना, वो क्या कर रही थी, क्योंकि जब पत्थर फेंक रहे थे तो उसको जोड़ने के लिए बालू चाहिए था, तो कुछ कुछ लोग बालू लेके जा रहे थे, तो गिलहरी क्या कर रही थी, वो अपने आप को ना उस रेत में अपने आप को गोल मोल लपेट रही थी, और फिर वो जा रही थी और वहां जाके पानी में उन पत्थरों के ऊपर झाड़ के फिर वापस आ रही थी। तो ये कर रही थी, तो और कुछ वहां पर जो लोग थे वो हंसने लगे, तो क्या कर रही है? बोलिए मैं वो जो कार्य है उस कार्य में मैं अपना सहयोग दे रही हूँ। मैंने पूछा इससे क्या होगा? तो भगवान राम ने उसको अपने हाथ में पाया, बोला नहीं, तेरी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। उस लीडर ने क्या इंश्योर किया कि कोई बंदा छोटा बड़ा नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी की इंपॉर्टेंस उतनी ही है टू रन द बिजनेस और टू अकॉम्प्लिश योर गोल। सो वी कैन नॉट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी फंक्शन। और ये मेरे को ना बहुत इन्फ्लुएंस करती है ये चीज। अब गिलहरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उसको पर्पस क्लियर था कि मां सीता को छुड़ा के आना है, उसके लिए एक पुल बनाना है, तो उसको गोल क्लियर था और वो अपने हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो इसीलिए जब बोर्ड रूम में हम बैठते हैं और 10 फंक्शन बैठे हुए हैं, तो लीडर्स का काम है, दे हैव टू गिव अ ड्यू रिस्पेक्ट and importance to each function. Similarly, when I'm talking about human resource function, there are sub-function, there are 3-4 people reporting to me who's handling comp and man, talent management and BHRP role. I cannot be biased to them because everything is important. If compliance is not important, then why that department is there? If recruitment is not important, then why talent acquisition guy is there or talent management person is there? I think everything is important. Great answer, sir. I'll continue this with another, a very close question to that. How you ensure cultural fit while hiring, and how candidate can also avoid joining a misfit organization? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं फॉलो करता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन स्पीड पे भी डिपेंड करता है, बट इसका आंसर मैं क्या फॉलो करता हूँ उससे ज्यादा मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए, जो मेरा विश्वास है कि इस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट, सबसे ज्यादा पहले हमें ये पूछना चाहिए अपने से, कल्चर है क्या? क्या वो एक सेट वैल्यूज है, या हमारी कोई विनिंग स्ट्रेटजी रही है which has given us due benefit in the organization? Can be penned down and define that. I think every organization, small or big business, should define their values. मैं इसमें firm believe करता हूँ, because we all human beings are different. आप अलग तरह से सोचते हो, मैं अलग तरह से सोचता हूँ, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हमारी जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में आके कॉमन बिहेवियर कैसे ड्राइव करेंगे? वो तो तभी ड्राइव कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं राइटिंग में होगा कि ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरा कल्चर है, मैं बनाना चाहता हूँ। कल्चर को अगर आप सिर्फ कल्चर वर्ड करके छोड़ दोगे तो वो कंफ्यूज कर देगा। तो किसी के लिए उसकी डेफिनेशन होगी कि हमें बहुत सारा एम्पावर करना चाहिए लोगों को, खूब फन होना चाहिए। किसी के लिए होना चाहिए नहीं यार हमें ना बहुत मेहनत करनी चाहिए। किसी के लिए हो सकता है कुछ और हो सकता है। मेरा मानना है कि आप अपना प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी एंड सर्विसेज देखिए और आप देखिए कि आपके लिए आज तक क्या चीजें काम की हैं। अगर आप एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बेस पे आप अपनी वैल्यूज और कल्चरल डेफिनेशन को बना दीजिए। अगर आप स्टार्टअप हो तो आप मार्केट से सीख लीजिए, या फिर आप खुद उसको एनालाइज करिए कि जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को देने वाले हैं उसके लिए सक्सेस मंत्रा क्या रहेगा, अल्टीमेटली पर्पस क्या है।
Why do you want to build a great culture? हम बोलते हैं great culture. Culture जो आपकी values है, ultimately that should complement your product and services to बिल्कुल। the external customer. उससे आपका बिजनेस आएगा तभी आप ग्रो करोगे। तो जब ये थ्योरी क्लियर है, if the leaders are able to spend sufficient time in that, I think the next level is how we can implement those through practices, through policies, through system in the organization. अब आपने बात करी हायरिंग की। अगर मेरे को पता है कि मेरा ये कल्चर और इस टाइप के लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होते हैं, देन आई शुड ब्रिंग ओनली दोज काइंड ऑफ पीपल. So it is very, very important you build that values and the culture what organization need to be successful for their product and services, and then you define what kind of people will complement those cultural values. करेक्ट। ठीक है ना? आप फिर अपनी हायरिंग स्ट्रेटजी को उस तरह से करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारी मैक्सिमम हायरिंग जो होती है वो एकेडमिक इंटेलिजेंस पे होती है या स्किल इंटेलिजेंस पे होती है। अच्छा जी, हमें एचआर का बंदा हायर करना है तो लेट्स लुक एट द एकेडमिक इंटेलिजेंस, मेरा बजट क्या है उसी हिसाब से हम टॉप 30 देखें, फिर हम नेक्स्ट 30 देखें, फिर नेक्स्ट 30 देखें। अच्छा, हमें कंटेंट मैनेजमेंट का रिसोर्स चाहिए, लेट्स लुक एट हु इज गुड इन दैट, बट देयर आर अदर इंटेलिजेंस आल्सो प्रिवेल, नो, which is your social intelligence, which is your collaborative intelligence, which is your spiritual intelligence, emotional connect. तो मेरा लगता है जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एकेडमिक और स्किल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आपकी अदर साइड है जो हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू आर आस्किंग मी कि एक कल्चरल फिट कैसा होना चाहिए, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है कि मेरी कल्चरल वैल्यू ये है, एंड बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन अगर काफी सालों से काम कर रही है तो उनको पता है किस टाइप के लोग सक्सेस हुए हैं, तो उनकी हायरिंग स्ट्रेटजी उससे अलाइन कर देनी चाहिए। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जाना है तो ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों के साथ नहीं जा सकते, उस टैलेंट के साथ नहीं जा सकते, उनके साथ भी जा सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। नाउ द पॉइंट इज, जब अब कल्चरल फिट देखें कैसे, आप देख सकते हो जो आपके पुराने लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो उनका इंटरव्यू करें और उन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दें मोर देन फंक्शनल एंड दिस थिंग, या फिर देयर इज एन साइकोमेट्रिक असेसमेंट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट आल्सो। तो आप जब ये सारा कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, बट पॉइंट क्या है ना, हम इतना टाइम लगाते नहीं, हम देखते हैं यार ये बंदा जा रहा है, 15 दिन का नोटिस है, दूसरा आपको आना है, बस मेरा ना काम हो जाए। बट आई सॉ चल जाता है ये फार्मूला में, तो अल्टीमेटली द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन हायरिंग दे नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल, बट इसको हम पेपर पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। मेरे को लगता है इसको पेपर पे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जब आप फंक्शनल कॉम्पिटेंसी देख रहे हो, जब आप एकेडमिक कॉम्पिटेंसी देख रहे हो, आपको बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी और आपका मैचिंग विद द कल्चर कॉम्पिटेंसी देखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा हट के एक एग्जांपल देता हूँ, डिस्क्लेमर है उस चीज के लिए कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे आपके इस पॉडकास्ट पे, पर मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो मैच मेकिंग है ना, ये आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है और इसमें कोई ना कोई साइंस यूज हुई है। आज हम साइकोमेट्रिक की बात करें या जो मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियरल पैटर्न, किस टाइप के बिहेवियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करें। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को हायर करना चाहता हूँ, हो सकता है वो एकेडमिक थोड़े से कम हो सकता है फंक्शनली भी उनको थोड़ा सा स्किल कम हो जो ट्रेनेबल है, बट वो बिहेवियरली इतने स्ट्रांग है कि वो अपने बॉस के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे या बॉस उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे, वो स्टाइल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब मैं दूसरे जो मैं डिस्क्लेमर दे रहा था, अब देखो सनातन धर्म में कुंडली मिलान होता है, आप शादी करते हो तो जॉब क्या है, वो भी किसी भी मैरिज है। यू आर हायरिंग सम पर्सन नॉट फॉर 2 months 3 months, यू आर हायरिंग सम पर्सन हु कैन एक्चुअली ट्रैवल विद यू, टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट हाई। सेम मैरिज है, तो मैरिज में क्या होता था, पहले के जमानों में कुंडली मिलान होता था और आज भी होता है। तो मैं उसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाऊंगा और मैं उसको प्रमोट भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी किया होगा उन ऋषि मुनियों ने जो उस टाइप के साइंटिस्ट रहे हों, उन्होंने बहुत सारी लाइफ को स्टडी किया होगा और एक फार्मूला बनाया होगा, जो वो फार्मूला लेके भी आया होगा, ठीक है, अपने पास। मतलब उन्होंने 8 कैटेगरी बनाई, जब कुंडली मिलान होता है उसमें 8 कैटेगरीज होती हैं, उनको उन्होंने मार्क्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए। पहले को उन्होंने 1 पॉइंट दिया, दूसरे को 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया, ऐसे 8 तक दिया। टोटल आपने सुना होगा 36 गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं। 36 में आपके कितने गुण मिले उसके बाद आपकी शादी होनी चाहिए। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा बारीकी से अंदर जाके घुसो तो उसमें 8 एरियाज ऑफ लाइफ जिनके नाम है वर्ना। वर्ना का मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वर्क, यानी कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। दूसरा होता है वश्या,
जिसका मतलब होता है डोमिनेंस, कौन किस पे डोमिनेंट रहेगा। तीसरा है तारा, डेस्टिनी है। ऐसे करके 8 चीजें हैं जो बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, हेल्थ कंपैटिबिलिटी को बताता है। वाह। अब उन ऋषि मुनियों ने ये फार्मूला बना दिया, दो सोल्स कम साथ में काम करने आ रही है, अगर उसमें से पर्टिकुलर कुछ गुण मिलते हैं तो आपका लाइफ उस हिसाब से चलने वाली है। उसमें एक प्रिंसिपल ये होता है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करता है, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है। पर पॉइंट ये है कि उस टाइम पे ये हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं कुंडली मिलान से? हम ये चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ खुश रहे, वो हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, उनके बच्चे अच्छे काम करें, वो अपने लाइफ कैरियर में अच्छा काम करें, अपने पेरेंट्स को अच्छा काम रखें और सोशली अच्छे इन्वॉल्व रहे। तो ये सारे लाइफ एरियाज हैं विच इज अ फार्मूला कम्स फ्रॉम कुंडली मिलान। जॉब कैसे अलग हुआ? जॉब में भी इट इज लाइक इन अ मैरिज। और यू टॉक अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप, if you are doing in a partnership with anyone, don't you think you need to align your thought process which is all this guna? एक तारा चक्कर है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आप अपने बॉस के लिए कैसे और बॉस आपके लिए कैसे। अच्छा, भी है। क्या क्या कहते हैं उसको? उसको तारा चक्कर बोलते हैं। अच्छा। इसमें दोनों की कुंडलियां देख के हम ये बता सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बॉस के साथ कैसा रहेगा और आप बॉस के लिए कैसे हो। इसके लिए चाहिए क्या होगा? बॉस का भी डेट ऑफ बर्थ तो? हाँ चाहिए। नो द पॉइंट इज, मैं बोलता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। कल्चरल फिट के लिए बॉस का साइकोमेट्रिक भी होना जरूरी है कि किस टाइप के लोग उस बॉस के साथ काम कर पाते हैं। फिर आप पहला फोकस ये करिए कि उसी स्टाइल के लोग जो काम कर पाते हैं आप उनको लेके आइए। आपने कभी देखा होगा कि बहुत अच्छा बंदा जिसने बहुत अच्छा काम किया इसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो गया। कई बार आपने ये भी विटनेस किया होगा, व्हेन यू गेट प्रमोटेड फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल, पीपल मे फेल। द रीजन इज, ये सारी जो जर्नी है ना, बिकॉज रेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस वी डोंट फोकस, विच इज बिहेवियरल, कोलैबोरेटिव, स्पिरिचुअल एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आजकल के बच्चे, हमारे किड जो है, दे आर कंट्रोलिंग गेम्स, दे आर प्लेइंग ऑन video games and everything. I'm not saying that is wrong. That is also giving them some growth in terms of mental, but they're controlling everything. आज से 10-15 साल पहले क्या होता था? आप बाहर जाते थे, खेलते थे, आप जब ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ खेलते थे तो आप जीतते थे, हारते थे, आप ह्यूमिलेट भी होते थे और ह्यूमिलेट करते भी होंगे, आपको कभी मार भी पड़ती थी। आप क्या कर रहे थे? आप वो लाइफ स्किल डेवलप कर रहे थे। जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बहुत पैम्पर कर दिया आपने, पहली बार बॉस ने कुछ बोला, वो नाराज हो गया, उसने जॉब छोड़ दी। So, मेरे को लगता है कि एज ए पेरेंट्स वी नीड टू वर्क अपॉन देयर लाइफ स्किल्स, schools have to work on their life skills. As an organization, we have to be responsible when we are hiring. We need to make sure that those profiles get success in the organization, and that can only be happen once you have the right compatibility with the organization and the boss. So psychometrics से कैंडिडेट का नहीं कराना है, अपना भी करना है। करेक्ट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो कल्चरल फिट की आपने बात करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वर्थ टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस, not to hire people in hurry, but once you spend time, sufficient time, your organization may not suffer. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। I have seen, this is little थोड़ा हटके ऐसे, I have seen few people, उनके डिपार्टमेंट से कोई छोड़ के जाता है, they start spending time in doing their work. They will not hire, they will not spend time in hiring. और वो बात में फिर क्राइसिस हो जाएगा। क्यों? चल रहा है काम। सबसे पहले अगर किसी इंपॉर्टेंट बंदे ने छोड़ दिया है तो द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड, द रिस्पेक्टिव पर्सन हैज टू पार्टिसिपेट विद ह्यूमन रिसोर्स एंड मेक श्योर दैट द हायरिंग इज डन। द प्रॉब्लम इज समटाइम वी डिफरेंशिएट। तो एचआर का काम था, मैंने तो सीवी मांगे थे, आज आए, कल आए, 4 दिन हो गया, ये सब बकवास है। If I am responsible for my function and the organization, I have to, the first accountability lies with me to make sure that the person is on board and the right individual is on board. HR might facilitate that process. I have seen individual who will just derail the interview. मैं आज में फंसा हूँ, मेरी मीटिंग हो रही है, they don't have time to interview. काम कर लेंगे एक्स्ट्रा, रात के 12 बजे तक, लेकिन they don't have time. And the first thing which I have done in my last role from before culinary plant, when there were no people, I spent time in hiring the right people. And I spent time aligning the people who were there in the organization.
bringing their belief with me and my belief in them. And after 6 months, I never had an issue. ग्रेट सर। सो आई थिंक ये पहली बार हम लोगों ने सुना इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि कि केवल जब हम कल्चरल फिट की बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द कैंडिडेट कि उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। हमारी वैल्यू तो ऑब्वियसली डिफाइन होनी चाहिए कल्चर की, जिसके साथ हम मैच करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस का, यानी जिस टीम के साथ वो काम करने जा रहा है, उसका भी साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर हम करवाएंगे और हमारे पास रहेगा तो अलाइनमेंट और वो कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही है सर। सो हमने सर हायरिंग की बात तो कर ली काफी। हाउ यू हैंडल एट्रिशन और रिटेंशन या इंगेजमेंट करिए, वो भी हमारी इंडस्ट्री, मतलब अगर मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन अगर आप बात करें इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, स्पेशली रेस्टोरेंट रिटेल। होटल्स में तो फिर भी कम होता है, बट रेस्टोरेंट रिटेल इज सुपर चैलेंजिंग। कैसे करते हैं? पीपल विल कम, स्टे एंड लीव, यूनिवर्सल रूल है। व्हाई पीपल विल लीव? दे मे लीव बिकॉज they want to double their salaries. They may leave because they are not enjoying their job, because the job is very monotonous. Yeah. They may leave because of their personal issues. तो इस चीज को अवॉइड करना, भी अट्रिशन जीरो हो जाएगा और इसी पे पूरा फोकस लगा दे, वो भी ठीक नहीं। यस, थोड़ा सा अट्रिशन हो रहा है, वो भी हेल्दी है, because you cannot control everything as an organization, right? I'm just, but on the other side, because I dealt with this QSR for the last 17-18 years, and you know that our attrition is 7-8-9%, because these young guys, 19-20 years old, they find themselves after 2 years, they believe that, or 6 months they believe that मेरे को graduation करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, and they have all the right to operate their lives. बिल्कुल। मेरे को लगता है 2 फार्मूलों पे हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले एंगेजमेंट को डिफाइन कर लो। एंगेजमेंट सिर्फ खेल कूद या फन से की जा सकती है, ऐसा नहीं। मेरे को लगता है क्लैरिटी ऑफ जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी 200% क्लियर कि इस रोल में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या काम करेगा। दूसरा, हमें ये डिफाइन करना चाहिए क्या ये इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर रोल से आगे मूव कर सकता है, जो QSR ने बहुत अच्छा किया हुआ है। द पीपल हु जॉइन एट अ टीम मेंबर, दे कैन बिकम मैनेजर्स इन 12-15 months। इससे 2 चीजें हो रही है। एक तो आप जैसे जैसे स्किल डेवलप करते जा रहे हो, आप उनको अप्रिशिएट करते जाओ बाय द वे ऑफ देयर डेजिग्नेशन, प्रमोशन एंड द सैलरी। यू आर अपग्रेडिंग देयर लाइफ, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग few people who have the potential and they knows plus and minus of the industry. Win-win situation है ना, and you are not giving them the salary hike because sitting at the same level. So मेरे को लगता है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा प्रोपोजिशन हो सकता है। आप, एक होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट होना है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ देना चाह रहे हो, क्या करोगे? जो आपका मार्केट स्टैंडर्ड है वही तो दोगे, लेकिन आप एक्सेलरेटेड ग्रोथ कैसे दे सकते हैं? जब आप उनको प्रमोट करोगे। आप प्रमोट तभी करोगे व्हेन दिस इंडिविजुअल आर काइंड ऑफ रेडी टू टेक द हायर अप जॉब्स। करेक्ट। एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन दैट करियर पाथ। तो दूसरा जो मैं आपको बोल रहा था, पीपल विल कम, स्टे एंड लीव। अगर आपने ये 2-3 चीजों पे काम कर लिया, ऑब्वियसली देन यू वर्क ऑन द पॉलिसीज, सिस्टम्स। मेरे को जैसे मानना है कि मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज समथिंग हैपेंस इन द फैमिली, they come under the financial burden. But while you give the right insurance policies, I'm just giving one example. You are keeping their worries free. There's no worry for them if there is something happen. Anyways, there is a worry because they are going through some crisis, but at least financial worry to nahi. So how organizations build a very strong infrastructure where benefits, policies, systems take care of the ecosystem, where employees spend most of the time in making sure that the delivery of the goods. And not, उसको चिंता नहीं है बाकी चीजों की। कई बार हम बहुत अच्छी चीजें कर देते हैं कि आपने इतना सेल्स रिवॉर्ड कर दिया, आपको हम दुबई ले जाएंगे, लेकिन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो मेरा सब मानना है कि अब जैसे मेरे पास एक
रिसेंट एक प्रॉब्लम आया कि हमारी एट्रिशन बढ़ गई है, एक कंपटीशन है जो उसको डबल सैलरी दे रहा है। अब अच्छा। हम भी डबल सैलरी देना शुरू कर दें, मेरा बिजनेस सस्टेनेबल नहीं, क्यों देनी है डबल सैलरी? हम्म, उसके लिए भी सस्टेनेबल नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन आएगा और वो डिसर्व कर देगा मार्केट में। अब आप कैसे सस्टेन करोगे? आप अपनी वैल्यू से सस्टेन करोगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका एट्रिशन बढ़ जाता है तो यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू हायर हम्म, फास्ट एंड ट्रेन फास्ट। एट्रिशन का सीधा काउंटर क्या है कि वन शुड हैव द कैपेबिलिटी टू हायर फास्ट एंड ट्रेन फास्ट। एंड हायरिंग आपको कंपटीशन से ही क्यों करनी है? हम्म, There are other ways by which you can hire. You can hire fresher and train them, हम्म, engage them. So there are ways and means. It depends upon the particular business situation. For example, if we talk about QSR, there was 7-8% attrition, and we have built that capacity to hire 3,000 people in a month or 4,000 people in a month. हम्म, And operation have built that infrastructure of training them fast. They become effective in 10 days. That's how the ecosystem is working. correct. तो मेरे को लगता है इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है यार। हम्म, हाँ, ऑब्वियसली लो एट्रिशन इज ऑलवेज गुड, but this can be handled through various methods. नहीं सही कह रहे हो। सो आई थिंक जो मेरा टेक अवे है आपके उससे मुझे लग रहा है कि एक तो द बेस्ट एंगेजमेंट कुड बी ग्रोथ, स्किलिंग देम, यू नो, मेकिंग देम ग्रो। ये सबसे ज्यादा अच्छा बहुत एंगेजमेंट है। बहुत और दूसरा, इंडस्ट्री को देखते हुए नॉन सस्टेनेबल डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जैसे मे बी ओला, उबर, स्विगी, अमेजोन, कोई भी ऐसा आता है विच इज अ फंडेड कंपनी और सबको पता है कि वो बर्न कर रहे हैं, और रादर देन जस्ट इन यू नो जस्ट टू कम्पीट देम आपने भी अगर वैसी सैलरी बढ़ा दी, वो सस्टेनेबल नहीं शॉर्ट टर्म होगा, Short वेव term आएगी चली जाएगी, सही कुछ बात नहीं है। होगा उससे। So it's better to develop your and work on your strength and hire and train fast. तो दोस्तों, बातें तो बहुत है सर के साथ करने के लिए, बट टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इस डिस्कशन को विराम देंगे और कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और लीडरशिप स्टाइल के बारे में। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव, और कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एचआर या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड इन अदर जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।